Good morning, friends. In the last lecture, we have seen how to obtain the middle terms, okay, or middle term. If power is odd, then number of terms are even. In that case, middle terms are 2. If the power of a plus b raised to n, where n is even, then the number of terms are odd. Therefore, the number of middle term is only one middle term is there. Now we are going to discuss the most important question of this chapter. Example number 6. Example number 6. In this example, we have to prove, show that the middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n 1 plus x raised to 2n is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 divided by n factorial into 2 raised to n x raised to n. There is a correction in your textbook, 2 raised to n here. Okay, 2n 2 raised to n. You have to correct this one. ये आपको करेक्ट करना है. यहाँ पे 2n लिया है आपके बुक में, तो ये आपको रिप्लेस करके 2 raised to n कर देना है. Where n is positive integer. Where n is positive integer. Now we have to find the middle term and prove that this is the middle term. Okay. First of all, find the middle term. Then we can prove this is the middle term. Okay. For finding the middle term, we required general term. So for the general term, we have to compare this with a plus b raised to n first. Here it is given that 1 plus x raised to 2n is there. Now compare it with a plus b raised to n. Therefore a equals to 1, b equals to x, and n equals to 2n here. Here a equals to 1, b equals to x, and n equals to 2n here. Now we want the general term. Therefore the general term, the formula for the general term is given by tr plus 1 equals to NCR a raised to n minus r b raised to r. Put the value of a, b and n here. We are getting n is 2n. Therefore we are getting 2NCR. A raised to means 1, raised to n means 2n minus r, and b is x raised to r here. Clear? ये हो गया हमारा जनरल टर्म tr plus 1. इसका सिंप्लीफिकेशन हो सके तब तक कीजिए. हमको पता है कि 1 की पावर कोई भी हो, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा. Therefore we are getting tr plus 1 equals to 2NCR 1 raised to n power 1 into x raised to r. ये हो गई हमारी जनरल. अब बात करते हैं मिडल टर्म की. तो मिडल टर्म कितनी आएगी पहले वो पता कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एक ही है, हमको पता होना चाहिए कि एक क्यों आती है. चलो, तो यहाँ पे जो पावर है, पावर क्या है? 2n. पावर क्या है? 2n. और हमको पता है कि n इवन हो या फिर ऑड हो, कोई भी इंटीजर लो पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन ही हो जाएगा. तो ये जो नंबर है पूरा 2n, जो भी पावर है 2n, वो कौन सी पावर है? इवन है. तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन आर 2n plus 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड एंड द मिडल टर्म इज 1. ओनली वन मिडल टर्म इज दैट एंड दिस वन इज दिस. ओके, ये है हमारी मिडल टर्म. हमको वो प्रूव करनी. चलो, कितनी मिडल टर्म आएगी? एक ही मिडल टर्म आएगी. चलो, मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? चलो, 2n इवन है कि ऑड है, पहले वो डिसाइड करो. यहाँ पे 2 जो पावर है 2n वो इवन है या ऑड है, तो पहले वो डिसाइड करो. हियर 2n
is even or odd? even to n is even। चलो अगर even है पावर तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर पावर इवन है तो मिडल टर्म्स के लिए और मिडल टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? चलो मिडल टर्म, ओके, मिडल टर्म अगर इवन पावर है तो फॉर्मूला क्या आता है? मिडल टर्म में फॉर्मूला लिखता हूं n/2, इवन है मतलब डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 है तो n/2 प्लस क्या था? 1th टर्म। मिडल टर्म मतलब कि n/2 प्लस 1th नंबर की जो भी टर्म है वो आएगी। अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, टोटल एक्सपेंशन में 5 टर्म्स आती है, उसमें तीसरे नंबर की टर्म मिडल टर्म है, रख लो 4/2, 2 प्लस 1 मतलब थर्ड नंबर की टर्म, बराबर है फॉर्मूला। अगर भूल जाओ तो एक बार ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो, एक बार ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने बताया देखो कैसे लॉजिक से हम फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, या फिर कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही सिंपल तरीका है। क्लियर? कोई भी n की वैल्यू ले लो इवन और चेक कर लो कि ये फॉर्मूला उसके लिए सही है या नहीं। क्लियर? चलो ये हो गया मिडल टर्म का फॉर्मूला। चलो n/2 प्लस 1 था, हियर n is 2n, here n is 2n, therefore we are getting 2n/2 plus 1th term, we are getting 2n/2 plus 1th term। क्या बच्चों? n की जगह पे हमने 2n रख लिया, 2 will get cancel out, therefore we are getting n plus 1th term। तो हमारी मिडल टर्म कौन से नंबर की टर्म है? n plus 1th नंबर की टर्म है। मतलब कि अगर हमको मिडल टर्म निकालनी है तो कौन से नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है? n plus 1th नंबर की टर्म हमको निकालनी है। चलो अब n plus 1th नंबर की टर्म निकालने के लिए जाते हैं। हमारे पास जनरल टर्म है tr plus 1, कौन से नंबर की टर्म है? r plus 1th नंबर की टर्म। अगर हमको n plus 1th नंबर की टर्म निकालनी हो, n plus 1th नंबर की टर्म निकालनी हो तो r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? n रखना पड़ेगा। r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? n रखना पड़ेगा। r plus 1 इक्वल्स टू क्या चाहिए हमको? n plus 1, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n plus 1। चलो नाउ फॉर द n plus 1th term, for the n plus 1th term put r equals to, क्या पुट करना है? r equals to n in the general term। जनरल टर्म में r की जगह पे n पुट कीजिए। चलो r की जगह पे n पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? t n plus 1 which is equals to 2nc and x raised to n। ये हो गई हमारी मिडल टर्म। n plus 1th नंबर की जो भी टर्म है वो हमारी मिडल टर्म है, वही हमारी मिडल टर्म है, तो ये हो गई हमारी मिडल टर्म। अब आपको जो दिया है वो ऐसे दिया है, मतलब इसको हम कन्वर्ट करके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये जो आया उसको हम कन्वर्ट करेंगे और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हमको पता है 2NCN, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCR इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? NCR मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ n की जगह पे 2n है और r की जगह पे n है, तो ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगा। देखो बच्चों मैंने कैसे प्रेजेंटेशन किया है, मैंने यहाँ पे हाफ पोर्शन छोड़ दिया, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाया, मतलब कि अलग मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ये ब्रैकेट का मतलब है कुछ मैं अलग लिखना चाहता हूँ, ये चीज मैंने अलग से बताई, बराबर। और जो स्पेस यहाँ पे रहने दी थी वो ऐसे क्या रहने दी,
यहाँ जो लाइन खत्म हुई उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ जो इक्वल था वही लाइन में मैंने इक्वल लिख के फिर से लिखना शुरू किया। ये है प्रेजेंटेशन की बहुत ही अच्छी स्किल। आज मैं ये सब नहीं सिखा रहा आपको, प्रेजेंटेशन भी सिखाना चाहता हूँ कि कैसे अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। देखो बच्चों, मैंने जो भी प्रेजेंट लिखा है वो कितना क्लियर कट लिखा है, और जहाँ पे स्पेस रखनी थी, जहाँ पे कॉमा रखना था, जहाँ पे कुछ नया लिखना था, देखो मैंने अलग से ये ब्रैकेट करके अलग लिखा क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला है, ये इसके कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, इसके कैलकुलेशन का पार्ट तो यही चलता जाएगा, तो मैंने उसको साइड पे अलग से थोड़ा बताया। मतलब कोई भी बंदा आपके पेपर को चेक करता है तो वो अलग से देख सकता है कि ये चीज इससे रिलेट है, पर इसके पीछे इसके बाद ये स्टेप आएगा, ना कि ये। क्लियर? इसके बाद ये स्टेप नहीं है, ये अलग पोर्शन है। इसके बाद का स्टेप ये है, पर ये अलग पोर्शन है जो फॉर्मूला पास में अंडरस्टैंड के लिए लिखा है। क्लियर बच्चों? तो ये है प्रेजेंटेशन स्किल। तो आज हम प्रेजेंटेशन स्किल्स भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि मैथ्स में अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बनाए। देखो इक्वल जहां पे भी होगा ना, वो लाइन टू लाइन ही होगा। देखो सब जगह देखो, यहाँ पे जब सब जगह पे हो ऐसा ही, जो देखो सब जगह पे, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे देखो आगे इक्वल नहीं लिखते, एक बार इक्वल है तो आगे इक्वल नहीं लिखते, तो मैंने क्या किया, आगे देयरफॉर लिखा होगा, जो देखो देयरफॉर लिखा होगा जिस जगह। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दो बार एक ही इक्वेशन में इक्वल नहीं लिखते। ओके, चलो 2nc n को इस फॉर्मूले से एक्सपांड करने के लिए जाते हैं। चलो n की जगह पे क्या है, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। n इक्वल्स टू 2n एंड r इक्वल्स टू n, दोनों रख दो। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2n माइनस n की जगह पे n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, और जो x रेज़ टू n था वो लास्ट में हम x रेज़ टू n लास्ट में लिखते हैं। ओके, उसको अलग ही रहने देते। ये इसका एक्सपेंशन है, x रेज़ टू n अलग है, ये इसका एक्सपेंशन ये होगी। अब इसको थोड़ा मरोड़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो उसका सिंपलीफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलो अब उसके सिंपलीफिकेशन के लिए जाते हैं। चलो अब इसके सिंपलीफिकेशन के लिए जाते हैं। चलो 2n फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल तो हम उसको स्टेप वाइज रिडक्शन के फॉर्म में कंसेक्यूटिव टर्म्स वन वर्ड रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं। तो 2n फैक्टोरियल है, उसको हमको लिखना है, तो पहली टर्म है 2n, फिर उसके बाद एक कम होके 2n माइनस 1, फिर उसके बाद एक कम होके 2n माइनस 2, फिर उसके बाद एक कम होके 2n माइनस 3, फिर उसके बाद एक कम होके 2n माइनस 4, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये चलेगा। चलो मैं यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन लिख रहा हूँ। 2n फैक्टोरियल क्या होगा, 2n फैक्टोरियल होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3, एक एक कम होता जाएगा, 2n में से एक एक कम होता जाएगा। 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 इंटू 2n माइनस 5 अप टू ऐसा चलता जाएगा। लास्ट में आता जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय में नीचे कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूं, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देता हूं, और जो लास्ट में x रेज़ टू n है वो मैं अलग से लिखता हूं x रेज़ टू n। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब सोचो, अब समझो कि क्या हो सकता है। मैं एक बात पूछ लूं, अगर 10 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसमें कितने टर्म्स आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 10 टर्म आते हैं, 10 टर्म आते हैं। ओके, अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो कितने टर्म आएंगे,
3 टर्म्स आएंगे। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो कितने टर्म्स आएंगे? 5 टर्म्स आएंगे। अगर मैं n फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो उसमें मल्टीप्लिकेशन में कितने टर्म्स आएंगे? n टर्म्स आएंगे। मैंने यहाँ पे 2n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन लिखा है, 2n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन लिखा है, तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे? तो कितने टर्म्स आएंगे? 2n टर्म्स आएंगे। क्लियर इतना बच्चों? कितने टर्म्स आएंगे? 2n टर्म्स आएंगे। और हमको पता है कि 2n इवन नंबर, 2n इवन नंबर। चलो अब मैं बात करता हूं, जितने भी टर्म्स आए वो कितने हुए? 2n। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो उसमें कितने टर्म्स आते हैं? 4 टर्म्स आते हैं। उसमें से 2 इवन है और 2 ऑड है। देख लो बच्चों, 4 into 3 into 2 into 1, 4 इवन है, 2 इवन है, मतलब 2 इवन है, 2 ऑड है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखता हूं, कितना एक्सपेंशन में टर्म्स आते हैं? 6 टर्म्स आते हैं। उनमें से 3 इवन है, 3 ऑड है। अगर मैं 8 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 8 टर्म्स आते हैं, उसमें से 4 इवन है, 4 ऑड है। ऐसे ही मैं 10 फैक्टोरियल लिखता हूं तो उसमें 10 टर्म्स आते हैं एक्सपेंशन में, और 5 इवन, 5 ऑड है। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2n है, मतलब उसके आधे इवन है, आधे ऑड है। क्लियर? आधे इवन है, आधे ऑड है। आधे मतलब 2n के हाफ कितने होते हैं? n। तो n टर्म्स इवन है, n टर्म्स ऑड है। क्लियर? इतना क्लियर बच्चों? n टर्म्स इवन है, n टर्म्स ऑड है। अभी जितने भी इवन टर्म्स हैं उन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। यस, I can take 2 common from all the even terms in this expansion. Okay? Even terms कितना है? n है। odd terms कितना है? n है। अब सोचो बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो 2n है वो even term, ये odd term, चलो इसके पीछे वाली even term, ये odd है। नेक्स्ट टर्म even आएगी, odd आएगी, ये even है, odd है, even है, odd है। ओके? जितनी भी इवन टर्म्स है, कितनी है? n। सब में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? 2 कॉमन ले रहा हूं। सब में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? 2 कॉमन ले रहा हूं। तो सोचो बच्चों, ये एक टर्म से 2 निकलेगा, ये दूसरे टर्म से भी 2 निकलेगा, ये तीसरे में से 2 निकलेगा, फिर यहां से 2 निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा। हर एक टर्म से, हर एक इवन टर्म से 2 2 2 2 कॉमन निकलेगा। और यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 n बार मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 2 raised to n। क्या लिखते हैं? बोलो बच्चों, 2 raised to n। क्लियर? पता चला? एक बार फिर से लिखो, कितने टर्म्स है? 2n टर्म्स है। उसमें से आधे इवन है, आधे ऑड है। आधे मतलब n टर्म्स इवन है, n टर्म्स ऑड है। अगर n टर्म्स इवन है तो जितने भी इवन टर्म्स है उसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। यस, कौन कौन से इवन टर्म्स है? तो 2n है, फिर 2n - 2 है, फिर 2n - 4 आएगा, फिर 2n - 6 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में 6, 4 और 2 सब इवन टर्म्स है। उन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। यस, आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम ऑल द इवन टर्म्स। ओके? अगर मैं 2 सब में से कॉमन लेता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा? 2 into 2 into 2 into 2 n टाइम्स कॉमन आएगा। और 2n टाइम्स जब कॉमन आता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 raised to n, 2 raised to n। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में हम 2 raised to n लिखेंगे। क्लियर बच्चों? हो गया? चलो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। चलो, which is equals to हम क्या लिख सकते हैं? ये 2n है, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है। 2 raised to n, सब में से मैंने 2 कॉमन लिया तो बचा क्या? 2 raised to n आ गया। चलो, जितने टर्म्स, जो भी इवन टर्म्स है उनमें से मैंने कॉमन लिया है, जितने भी इवन टर्म्स है उनमें से मैंने कॉमन लिया है, तो मैं पहले इवन टर्म्स से लिख दूं ना, जो भी बचे
वो इवन टर्म्स पहले लिख देता हूँ, फिर लास्ट में ऑड टर्म्स लिखूंगा। चलो ये 2n जिसमें से मैंने कॉमन लिया है वो बाकी के टर्म्स लिख रहा हूँ। चलो यहाँ पे n हो जाएगा, ये 2n था उसमें से 2 कॉमन आ गया तो n हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा n-1। यहाँ से 2n-4 था, 2n-4 था उसमें से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा n-2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2n-6, उसमें से भी मैंने 2 कॉमन तो लिया ही है तो वो का क्या हो जाएगा n-3। क्या हो जाएगा बच्चों n-3। ऐसे लास्ट में 6 होगा, 6 में से मैंने 2 कॉमन लिया होगा तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे 4 है उसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ लास्ट टर्म है 2 तो वहां पे क्या हो जाएगा 1। ये जिसमें से मैंने 2 कॉमन लिया ये टर्म ही लिखी है पहले। अब जितने ऑड टर्म्स थे जिसमें से मैंने 2 कॉमन नहीं लिया है वो मैं मल्टीप्लिकेशन में यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों जिसमें से मैंने कॉमन नहीं लिया है वो कौन कौन सी टर्म है, वो है 2n-1, फिर क्या होगी 2n-3, फिर क्या होगी 2n-5, फिर क्या होगी 2n-7। समझ सकते हो आप और कौन से टर्म्स तक चली जाएगी तो लास्ट में यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा और 1 होगा। इतने तक क्लियर है। ये सारे ऑड टर्म्स है जिसमें से मैंने 2 कॉमन नहीं लिया है। ये सारे इवन टर्म्स थे उनमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2n इंटू जो भी बच्चा वो लिखा है, और डिवीजन में डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल तो है ही, और लास्ट में x⁴n भी है मैंने लिख दिया। बोलो क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा बहुत एक्सपेंशन। अब समझो ये चीज आपको पता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? वो तो n फैक्टोरियल है, ये तो n फैक्टोरियल है, हमको पता है ना। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ये पूरा हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये जो टर्म है पूरी वो क्या हो जाएगी n फैक्टोरियल। चलो बच्चों क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर पता ना चले तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही क्लियर कट है पूरा। चलो तो ये हो जाएगा 2n तो है ही, 2n तो है इंटू ये पूरी टर्म क्या हो गए n फैक्टोरियल, और ये जो टर्म थी, ये जो टर्म थी वो भी हम लिख सकते हैं। सारी ऑड टर्म्स है, मैं ये सब ऑड टर्म्स को लिख देता हूं पास में। 2n-1, 2n-3, 2n-5 नहीं लिखता हूं तो पता चल जाएगा ना क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x⁴n। चलो बच्चों ये n फैक्टोरियल विल गेट कैंसल आउट, ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल। अब ये जो 2n है उसको ऐसे लिख दो 2n। हमको यहाँ पे जो सीक्वेंस दी है, ये जो सीक्वेंस दी है वो 1 3 5 पहले लिखा है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं। तो हम इसको पहले लिख देते इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू लास्ट में क्या आएगा 2n-3 इंटू 2n-1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। एक तो कैंसिल हो गया, दूसरा बचा और x⁴n में जो ये 2n है उसको भी पीछे लिख देता हूं जो x⁴n के पास में, क्योंकि दोनों सेम टाइप के लग रहे हैं क्योंकि पावर दोनों की n है। तो मैं 2n पीछे लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2n x⁴n। क्लियर बच्चों, यहां तक जो प्रूव करना था वो मिल गया। तो therefore the middle term, show that करके हम लिख सकते हैं the middle term in the expansion of
1 plus x raised to 2n is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 divided by n factorial into 2 raised to n x raised to n where n belongs to positive integer मतलब set of natural numbers। क्लियर? ये था बहुत ही मस्त अच्छा क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन भी समझना था और प्रेजेंटेशन भी समझना था। हर रोज हम नया कुछ सीख रहे हैं तो यहाँ से कुछ नया सीख के जाइए। आज के लिए यहाँ एक ही क्वेश्चन रखते हैं सर, एक ही क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो पूरे बोर्ड में कंप्लीट होंगे और पूरे बोर्ड में कंप्लीट हो गए तो हमको पता है कि 25 मिनट्स 30 मिनट्स तक हो ही जाता है वीडियो पूरा समझने के लिए। और एक चीज, प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइटिंग डजंट मैटर, राइटिंग अच्छी होती है आप सबकी, आप भी अच्छा निकालने की कोशिश करते ही हो, पर प्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसके लिए राइटिंग की जो भी इफेक्ट है वो निकल जाती है। ओके, तो हम राइटिंग इफेक्ट को प्रेजेंटेशन से बनाएंगे। तो यस, प्रेजेंटेशन देख लो बच्चों, बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने दिखाया गया पे। तो आप एक बार प्रेजेंटेशन पे फोकस कीजिए या इस वीडियो से आप कुछ नया सीखेंगे। अब मैं बात करता हूँ ऐसे जो भी क्वेश्चन में मोस्ट एमपी या एमपी लिखो, मतलब वो एग्जाम में कई बार आते ही हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही 1, 2 या 3 बार प्रैक्टिस खुद से कर लो। आज ही प्रैक्टिस कर लो, आगे करने की जरूरत नहीं। टेस्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत टाइम कम वहां यूज होगा। बहुत ही कम टाइम में आप एक क्वेश्चन फिर से एक बार कैलकुलेट कर सकते हो टेस्ट के टाइम पे और बहुत ही अच्छे से मार्क्स 3 या 4 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में खास याद रखना बच्चों, ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार एक बार खुद से नोटबुक में, तो एक बार आप फेसबुक में लिख ही रहे हो, वो देख के लिखो या फिर अच्छे से आपने खुद से सॉल्व किया हो, बढ़िया तरीका है जो भी आपका है। पर 1 या 2 बार आप रफ वर्क में भी खुद से सॉल्व कर दीजिए और आज ही कीजिए, उसको 2 दिन बाद करोगे ऐसा नहीं, आज ही कीजिए। जिस दिन वीडियो देखा उसी दिन कीजिए तो आपको मैथ्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो आज की इस वीडियो के लिए एक लाइक कमेंट तो बनता ही है बच्चों। मैंने आज कुछ नया सिखाया है, प्रेजेंटेशन एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है अच्छे तरीके से। क्लियर बच्चों? चलो, थैंक यू वेरी मच।